रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। لیکن عطیہ بی بی نہیں مانی. بڑی بیگم صاحبہ نے ہر طرح کی کوشش کی. بڑی بیگم صاحبہ نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے. آپ کے اور میرال بی بی کے رشتے کے لیے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے التجا کی. آپ اس پہ یقین کر لیں. ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا. کیا جھوٹ ہے اس میں کہ اس رات تم نے آئیڈیا دیا تھا کہ جائیں وہ اکیلے جائیں اس گاڑی میں. وہ گاڑی بھی تم نے دلا کے دی, اپنے لوگ بھی بھیجے. میرے ماموں کو مجھے ہمیشہ کے لیے کیوں لے لیا تم نے؟ گھر چل کے بات کرتے ہیں. چھوڑو. کچھ بندے یہاں چھوڑ دو. خود تم یار کے پاس جاؤ, مجھے یہاں چاہیے. جی سر جی. ایسا کیا خاص ہے اس جگہ؟ کیوں لے کے آئی ہو مجھے؟ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ جگہ دکھانا چاہتی تھی میں تمہیں. یہ جگہ علی خان کے دل کے بہت قریب ہے. یہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے. تم صرف سوچو, جب اس کی سب سے بڑی ویکنس یہ فیکٹری, تو کیا تم اس کی دعوے دار؟ جو اصل حقدار ہیں وہی دعوے دار ہیں بیچارے. ہلو. علی خان سائیں, علی خان سائیں, میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. اس لیے مجھے حیرانی نہیں ہوئی, لیکن ہاں افسوس ہوگا اگر تم بے گناہ مارے جاؤ. ویلکم ٹو ادر ریویوز. سجرت متروں, کیا میرال کی زندگی کا سب سے بڑا راز آخرکار ایکسپوز ہو سکتا ہے؟ کیا علی خان واقعی بے قصور ہے یا وہی اس پرانی کا سب سے بڑا ویلن ہے؟ دوسری طرف ایلیا کی خطرناک پلان ہر لمحہ کامیابی قریب پہنچ رہی ہے, جبکہ عادل اپنے ضمیر اور سازش کے درمیان بری طرح الجھ چکا ہے. آخر نکاح کے دن ایسا کیا ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا؟ کیا ٹروت سامنے آ جائے گا یا پھر لو ایک بار پھر نفرت کے ہاتھوں شکست کھائے گا؟ اس سٹوری میں ہر ایک نیا ٹویسٹ سب کو حیران کرنے والا ہے, اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ناظرین, میرال کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں ایک ہی لمحہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایک وہ وقت تھا جب ہر صبح اپنے ساتھ ویک لے کر آتی تھی, اور دوسرا یہ جب ہر نیا دن کسی نامعلوم خوف کا پیغام بن چکا تھا. والد کی وفات کے بعد گھر کی دیواریں بھی اجنبی محسوس ہونے لگی تھیں. ماں کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جو الفاظ سے کہیں زیادہ درد بیان کر رہی تھی. میرال جتنی بار ان سے سوال کرتی, اتنی ہی بار جواب کی جگہ خاموش نظریں ملتی تھیں. اسے بے یقینی کے دوران اچانک دروازے کی بیل بجتی ہے. آنے والا شخص زیادہ دیر نہ رکا, مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا کہ سچ وہ نہیں جو میرال برسوں سے مانتی آئی ہے. یہ ایک جملہ اس کے ذہن میں مسلسل گونجنے لگا. وہ بار بار سوچتی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جسے ہر شخص جانتا ہے مگر اس سے چھپایا جا رہا ہے. دوستوں, انہی خیالوں میں اسے علی خان یاد آتا ہے, وہ شخص جس کی موجودگی اس کے لیے ہمیشہ ہوپ کی علامت بنی ہوئی تھی. وہی علی خان جس نے ہر مشکل وقت میں اس کا حوصلہ بڑھایا تھا, ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دیا اور کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا تھا. لیکن اب حالات کچھ ایسے رخ پر آ چکے تھے کہ اس شخص کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی تھیں. میرال کا دل ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, مگر دماغ مسلسل اسے خبردار کر رہا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی. اس کشمکش نے اس کے اندر ایک ایسی چیز بے چینی پیدا کر دی جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. دوسری جانب ایلیا نہایت اطمینان سے اپنے منصوبے کے ہر مرحلے کو ترتیب دے رہی تھی. اس کے سامنے عادل خاموش کھڑا تھا, جیسے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تحت وہاں موجود ہو.
एलिया की आंखों में अजीब सी स्माइल थी, मगर इसे मुस्कुराहट के पीछे बरसों की नफरत, इंतकाम और शिकस्त का जहर छुपा हुआ था। इसने आदिल को वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि आने वाली वेडिंग सिर्फ एक खुशी की तकरीब नहीं बल्कि इसके इंतकाम का मैदान बन चुका है। जब पूरी फैमिली निकाह की खुशियों में डूब चुकी थी, जब स्टेज पर सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर जमी हुई थी, तब आदिल सबके सामने मिराल से शादी से इनकार करेगा। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि वो ये इल्जाम भी लगाएगा कि मिराल का अली खान के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों कई बरसों से बिजनेस के बहाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आदिल ने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर इस सब से क्या हासिल होगा, मगर एलिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त खुद दे देता है। दोस्तों, इसके नजदीक असल गेम अभी शुरू हुआ था और इस खेल में जज्बात, एतमाद और रिश्ते सिर्फ मोहरे थे। बरसों से संभाल कर रखी गई इज्जत चंद लम्हों में बिखर जाए ताकि वो हर शख्स जिसने इसे तकलीफ दी थी अपनी बेबसी अपनी आंखों से देखे। नाज़रीन, इधर अली खान को यकूब ने खबरदार किया कि एलिया की चाल आम साजिश नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें मिराल समेत सब फंस सकते हैं। अली ने फौरन फैसला किया कि वो हर कीमत पर सच सामने लाएगा, चाहे इसके लिए इसे अपने बारे में बरसों से छुपाई गई हकीकत ही क्यों ना जाहिर करनी पड़े। इसके दिल में मिराल के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का दूसरा नाम भी है। दूसरी तरफ मिराल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और मसरूफियात में खुद को उलझाने की कोशिश कर रही थी कि मगर इसका जहन हर लम्हा अली की तरफ खींचा जाता। एक दिन वो आदिल के साथ एक कैफे में बैठी कॉफी और सैंडविच के सामने खामोश बैठी थी, मगर इसके दिल के अंदर सवालों का शोर बढ़ता हुआ जा रहा था। वो अपनी वालदा की बीमारी में मुसलसल बढ़ते हुए स्ट्रेस और मुस्तकबिल की उलझनों का जिक्र कर रही थी, जबकि आदिल अपने ज़मीर और एलिया के अहकामात के दरमियान फंसा हुआ था। इसी लम्हे अली खान की कॉल आई, मगर हकीकत एक बार फिर खामोश होती हुई नजर आई। तीनों अपनी अपनी जगह एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुके थे जहां ट्रुथ तक पहुंचने की कीमत शायद इनकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा होने वाली थी। दोस्तों, मिराल की बेचैनी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। एक दिन वही पुरस्कार खातून दोबारा इसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें ऐसी तस्वीर, दस्तावेजात और पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे जिन्होंने मिराल को दुनिया को यकसर बदल दिया। इसे मालूम हुआ कि शाहनवाज खान इसके मरहूम मामू थे और अली खान सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि इसके खानदान से जुड़ा हुआ वो किरदार था जिसकी हकीकत बरसों तक इससे छुपाई गई थी। यह इंकिशाफ किसी शौक से कम नहीं था। मिराल के जहन में एक साथ सैकड़ों सवाल गर्दिश करने लगे। वो सोचने लगी कि अगर अली ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी तो फिर अपनी शनाख्त क्यों छुपाई है? क्या इसके हर मेमोरी झूठ थी या इन यादों में वाकई कोई खुलूस भी मौजूद था? दूसरी तरफ एलिया अपने मंसूबे की कामयाबी पर मुतमिन थी क्योंकि इसे यकीन था कि ऐसा करने से सब लोग बर्बाद होने वाले हैं। इसे यकीन था कि मिराल कभी अली पर ट्रस्ट नहीं करेगी और यही इसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। इधर आदिल भी अपने ज़मीर की अदालत में खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसमें बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। दोस्तों, इसी दौरान अली खान ने फैसला किया कि अब मजीद खामोश रहना सबसे बड़ी गलती होगी। वो मिराल के सामने पहुंचा और पहली बार इसने अपनी जिंदगी के हर राज से पर्दा उठा दिया। इसने बता दिया कि इसने अपनी शनाख्त सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि माजी की दुश्मनियां इनकी मोहब्बत तक ना पहुंच सके। इसने एतराफ किया कि इस खानदान भी कोई बरसों से गलत फैसलों की सजा भुगत रहा है, मगर इसने कभी मिराल या इसके वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो ऐसा सोच सकता है। दोस्तों, अली की आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसने कहा कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो इस जुर्म का एतराफ करता है, मगर कत्ल, धोखे और इंतकाम का इल्जाम हरगिज कबूल नहीं करेगा। मिराल का दिल इसकी बातों पर यकीन करना चाहता था, मगर सामने मौजूद एविडेंस इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, जज्बात और हकीकत के दरमियान खड़ी मिराल के लिए फैसला करना आसान नहीं था। इसने अली से दूर रहने का ऐलान कर लिया, जबकि अली सिर्फ एक जुमला कह सका कि कभी कभी सच को साबित होने में वक्त लगता है, मगर वो एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, चंद दिन बाद वही निकाह का दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार हर शख्स मुख्तलिफ नीयत के साथ कर रहा था। हाल खूबसूरती से सजा हुआ था, हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स और खुशियों का शोर था, मगर इस चमक के पीछे कई चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही निकाह का रस्म शुरू होने वाली थी, आदिल अचानक सबके सामने खड़ा हो गया। हर शख्स ने समझा कि वो कोई रस्मी बात करेगा, मगर इसने एक लम्हे के लिए एलिया की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगले लम्हे इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। इसने पूरी साजिश, एलिया के तमाम आदात और अपने किरदार का एतराफ कर लिया। हाल में मुकम्मल साइलेंस छा गई। एलिया के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक लम्हे में बिखर गया। मिराल हैरत से कभी आदिल को देखती और कभी अली को, जबकि हर शख्स हकीकत जानकर सख्ते में आ चुका था। दोस्तों, यकूब ने भी वो तमाम सबूत पेश कर दिए जिनसे साबित हुआ कि एलिया बरसों से नफरत की बुनियाद पर सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। इसी लम्हे मिराल को एहसास हुआ कि सच हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। एलिया की तमाम चालें नाकाम हो चुकी थी। इनके इंतकाम की इमारत इसी अपने झूठ के बोझ तले गिर गई।
मिराल आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। दोस्तों, अली ने भी किसी शिकवे के बगैर सिर्फ इतना कहा कि मोहब्बत का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। दोनों ने फैसला किया कि वो माजी की जंजीरों में कैद रहने की बजाय एक नई जर्नी का आगाज कर सकते हैं, जहां लव नफरत पर फेथ, होप पर जस्टिस, इंतकाम पर फ्यूचर, माजी के अंधेरों पर गालिब होगा। सूरज की पहली किरण आसमान पर नमूदार हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुदरत खुद ऐलान कर रही हो कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है मगर हमेशा नहीं। दोस्तों, बात कहानियां इख्तिताम पर खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से एक नई बिगनिंग जन्म लेती है, और मिराल और अली खान की कहानी अब इस नए बाब में दाखिल हो चुकी थी, जहां उम्मीद ने मायूसी को, सच ने फरेब को, और मोहब्बत ने हर नफरत को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ट्रुथ एक न एक दिन सामने आता है, चाहे इसे कितनी ही चालाकी से क्यों न छुपाया जाए। ट्रस्ट हर रिश्ते की बुनियाद होता है, और जब एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ जाती है। हमें दूसरों के बारे में फैसले करने से पहले हर पहलू को समझना चाहिए, क्योंकि हर स्टोरी के दो रुख होते हैं। नफरत और इंतकाम वक्ती विक्ट्री तो दे सकते हैं, मगर दिल का सुकून कभी नहीं दे सकते। आखिरकार लव, सब्र, सच्चाई और खलूस वो ताकतें हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और रिश्तों को हमेशा कायम रखती हैं। दोस्तों, आज की दिलचस्प स्टोरी यही खत्म होती है, लेकिन असल सवालात अभी बाकी हैं। आपको मिराल और अली खान की मोहब्बत कैसी लगी? क्या आपके ख्याल में अली खान ने अपनी शनाख्त छुपाकर दुरुस्त फैसला किया था, या इसे शुरू से ही सच बता देना चाहिए था? एलिया के किरदार के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वो सिर्फ इंतकाम लेना चाहती थी, या इसके पास अपने अमल की कोई मजबूत वजह भी थी? आदल ने आखिर में सच बोलकर जो डिसीजन लिया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और इस कहानी की एंडिंग ने आपको मुतमिन किया या आपके मुख्तलिफ अंजाम की तवक्को रख रहे थे? अपनी फेवरेट किरदार का नाम जरूर लिखें और ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा मुतासर सीन्स कौन से थे। अगर आपके ख्याल में आगे इस कहानी का दूसरा पार्ट आना चाहिए तो अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असल ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने भाईजान को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। सजरते मित्रों, क्या मिराल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज आखिरकार एक्सपोज हो सकता है? क्या अली खान वाकई बेकसूर है या वही इस पुरानी का सबसे बड़ा विलन है? दूसरी तरफ एलिया की खतरनाक प्लान हर लम्हा कामयाबी करीब पहुंच रही है, जबकि आदल अपने जमीर और साजिश के दरमियान बुरी तरह उलझ चुका है। आखिर निकाह के दिन ऐसा क्या होगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या ट्रुथ सामने आ जाएगा या फिर लव एक बार फिर नफरत के हाथों शिकस्त खाएगा? इस स्टोरी में हर एक नया ट्विस्ट सबको हैरान करने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मिराल को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी में एक ही लम्हा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वो वक्त था जब हर सुबह अपने साथ उम्मीद लेकर आती थी, और दूसरा ये जब हर नया दिन किसी नामालूम खौफ का पैगाम बन चुका था। वालिद की वफात के बाद घर की दीवारें भी अजनबी महसूस होने लगी थीं। माँ के चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जो अल्फाज से कहीं ज्यादा दर्द बयान कर रही थी। मिराल जितनी बार इनसे सवाल करती, इतनी ही बार जवाब की जगह खामोश नजरें मिलती थीं। इसे बेयकीनी के दौरान अचानक दरवाजे की बेल बजती है। आने वाला शख्स ज्यादा देर ना रुका, मगर जाते जाते इतना जरूर कह गया कि सच वो नहीं जो मिराल बरसों से मानती आई है। ये एक जुमला इसके जहन में मुसलसल गूंजने लगा। वो बार बार सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे हर शख्स जानता है मगर इससे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं ख्यालों में इसे अली खान याद आता है, वो शख्स जिसकी मौजूदगी इसके लिए हमेशा होप की अलामत बनी हुई थी। वही अली खान जिसने हर मुश्किल वक्त में इसका हौसला बढ़ाया था, हर परेशानी में इसका साथ दिया और कभी इसे तन्हा महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे रुख पर आ चुके थे कि इस शख्स के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही थी। मिराल का दिल इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर दिमाग मुसलसल इसे खबरदार कर रहा था कि हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती। इस कश्मकश ने इसके अंदर एक ऐसी चीज बेचैनी पैदा कर दी जिससे निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दूसरी जानिब एलिया नहायत इत्मीनान से अपने मंसूबे के हर मरले को तरतीब दे रही थी। इसके सामने आदल खामोश खड़ा था, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत वहाँ मौजूद हो। एलिया की आंखों में अजीब सी स्माइल थी, मगर इसे मुस्कुराहट के पीछे बरसों की नफरत, इंतकाम और शिकस्त का जहर छुपा हुआ था। इसने आदल को वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि आने वाली वेडिंग सिर्फ एक खुशी की तकरीब नहीं बल्कि इसके इंतकाम का मैदान बन चुका है। जब पूरी फैमिली निकाह की खुशियों में डूब चुकी थी, जब स्टेज पर सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर जमी हुई थी, तब आदल सबके सामने मिराल से शादी से इनकार करेगा। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि वो ये इल्जाम भी लगाएगा कि मिराल का अली खान के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों कई बरसों से बिजनेस के बहाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आदल ने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर इस सब से क्या हासिल होगा, मगर एलिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त खुद दे देता है। दोस्तों, इसके नजदीक असल गेम अभी शुरू हुआ था और इस खेल में जज्बात, एतमाद और रिश्ते सिर्फ मोहरे थे।
बरसों से संभाल कर रखी गई इज्जत चंद लम्हों में बिखर जाए, ताकि वो हर शख्स जिसने इसे तकलीफ दी थी अपनी बेबसी अपनी आंखों से देखे। नाजरीन, इधर अली खान को यकूब ने खबरदार किया कि एलिया की चाल आम साजिश नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें मिराल समेत सब फंस सकते हैं। अली ने फौरन फैसला किया कि वो हर कीमत पर सच सामने लाएगा, चाहे इसके लिए इसे अपने बारे में बरसों से छुपाई गई हकीकत ही क्यों ना जाहिर करनी पड़े। इसके दिल में मिराल के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का दूसरा नाम भी है। दूसरी तरफ मिराल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और मसरूफियात में खुद को उलझाने की कोशिश कर रही थी कि मगर इसका जहन हर लम्हा अली की तरफ खींचा जाता। एक दिन वो आदिल के साथ एक कैफे में बैठी कॉफी और सैंडविच के सामने खामोश बैठी थी, मगर इसके दिल के अंदर सवालों का शोर बढ़ता हुआ जा रहा था। वो अपनी वालदा की बीमारी में मुसलसल बढ़ते हुए स्ट्रेस और मुस्तकबिल की उलझनों का जिक्र कर रही थी, जबकि आदन अपने ज़मीर और एलिया के अहकामात के दरमियान फंसा हुआ था। इसी लम्हे अली खान की कॉल आई, मगर हकीकत एक बार फिर खामोश होती हुई नजर आई। तीनों अपनी अपनी जगह एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुके थे जहाँ ट्रुथ तक पहुँचने की कीमत शायद इनकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा होने वाली थी। दोस्तों, मिराल की बेचैनी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। एक दिन वही पुरस्कार खातून दोबारा इसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें ऐसे तस्वीर, दस्तावेजात और पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे जिन्होंने मिराल को दुनिया को यकसर बदल दिया। इसे मालूम हुआ कि शाहनवाज खान इसके मरहूम मामू थे और अली खान सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि इसके खानदान से जुड़ा हुआ वो किरदार था जिसकी हकीकत बरसों तक इससे छुपाई गई थी। यह इंकिशाफ किसी शौक से कम नहीं था। मिराल के जहन में एक साथ सैकड़ों सवाल गर्दिश करने लगे। वो सोचने लगी कि अगर अली ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी तो फिर अपनी शनाख्त क्यों छुपाई है? क्या इसके हर मेमोरी झूठ थी या इन यादों में वाकई कोई खुलूस भी मौजूद था? दूसरी तरफ एलिया अपने मंसूबे की कामयाबी पर मुतमिन थी, क्योंकि इसे यकीन था कि ऐसा करने से सब लोग बर्बाद होने वाले हैं। इसे यकीन था कि मिराल कभी अली पर ट्रस्ट नहीं करेगी और यही इसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। इधर आदिल भी अपने ज़मीर की अदालत में खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसमें बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। दोस्तों, इसी दौरान अली खान ने फैसला किया कि अब मजीद खामोश रहना सबसे बड़ी गलती होगी। वो मिराल के सामने पहुंचा और पहली बार इसने अपनी जिंदगी के राज से पर्दा उठा दिया। इसने बता दिया कि इसने अपनी शनाख्त सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि माजी की दुश्मनियां इनकी मोहब्बत तक ना पहुंच सके। इसने एतराफ किया कि इस खानदान भी कोई बरसों से गलत फैसलों की सजा भुगत रहा है, मगर इसने कभी मिराल या इसके वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो ऐसा सोच सकता है। दोस्तों, अली की आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसने कहा कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो इस जुर्म का एतराफ करता है, मगर कत्ल, धोखे और इंतकाम का इल्जाम हरगिज कबूल नहीं करेगा। मिराल का दिल इसकी बातों पर यकीन करना चाहता था, मगर सामने मौजूद एविडेंस इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, जज्बात और हकीकत के दरमियान खड़ी मिराल के लिए फैसला करना आसान नहीं था। इसने अली से दूर रहने का ऐलान कर लिया, जबकि अली सिर्फ एक जुमला कह सका कि कभी कभी सच को साबित होने में वक्त लगता है, मगर वो एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, चंद दिन बाद वही निकाह का दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार हर शख्स मुख्तलिफ नीयत के साथ कर रहा था। हाल खूबसूरती से सजा हुआ था, हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स और खुशियों का शोर था, मगर इस चमक के पीछे कई चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही निकाह का रस्म शुरू होने वाली थी, आदिल अचानक सबके सामने खड़ा हो गया। हर शख्स ने समझा कि वो कोई रस्मी बात करेगा, मगर इसने एक लम्हे के लिए एलिया की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगले लम्हे इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। इसने पूरी साजिश, एलिया के तमाम आदात और अपने किरदार का एतराफ कर लिया। हाल में मुकम्मल साइलेंस छा गई। एलिया के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक लम्हे में बिखर गया। मिराल हैरत से कभी आदिल को देखती और कभी अली को, जबकि हर शख्स हकीकत जानकर सख्ते में आ चुका था। दोस्तों, यकूब ने भी वो तमाम सबूत पेश कर दिए जिनसे साबित हुआ कि एलिया बरसों से नफरत की बुनियाद पर सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। इसी लम्हे मिराल को एहसास हुआ कि सच कब हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। एलिया की तमाम चालें नाकाम हो चुकी थी। इनके इंतकाम की इमारत इसी अपने झूठ के बोझ तले गिर गई। मिराल आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। दोस्तों, अली ने भी किसी शिकवे के बगैर सिर्फ इतना कहा कि मोहब्बत का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। दोनों ने फैसला किया कि वो माजी की जंजीरों में कैद रहने की बजाय एक नई जर्नी का आगाज कर सकते हैं, जहां लव नफरत पर फेथ, खौफ पर जस्टिस, इंतकाम पर फ्यूचर, माजी के अंधेरों पर गालिब होगा। सूरज की पहली किरण आसमान पर नमूदार हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुदरत खुद ऐलान कर रही हो कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, मगर हमेशा नहीं। दोस्तों, बात कहानियां इख्तिताम पर खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से एक नई बिगनिंग जन्म लेती है और मिराल और अली खान की कहानी अब इस नए बाब में दाखिल हो चुकी थी, जहां उम्मीद ने मायूसी को, सच ने फरेब को
और मोहब्बत ने हर नफरत को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ट्रुथ एक न एक दिन सामने आता है, चाहे इसे कितनी ही चालाकी से क्यों न छुपाया जाए। ट्रस्ट हर रिश्ते की बुनियाद होता है और जब एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ जाती है। हमें दूसरों के बारे में फैसले करने से पहले हर पहलू को समझना चाहिए, क्योंकि हर स्टोरी के दो रूप होते हैं। नफरत और इंतकाम वक्ती विक्ट्री तो दे सकते हैं, मगर दिल का सुकून कभी नहीं दे सकते। आखिरकार लव, सब्र, सच्चाई और खलूस वो ताकतें हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और रिश्तों को हमेशा कायम रखती हैं। दोस्तों, आज की दिलचस्प स्टोरी यही खत्म होती है, लेकिन असल सवालात अभी बाकी हैं। आपको मिरार और अली खान की मोहब्बत कैसी लगी? क्या आपके ख्याल में अली खान ने अपनी शनाख्त छुपाकर दुरुस्त फैसला किया था, या इसे शुरू से ही सच बता देना चाहिए था? एलिया के किरदार के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वो सिर्फ इंतकाम लेना चाहती थी या इसके पास अपने अमल की कोई मजबूत वजह भी थी? आदिल ने आखिर में सच बोलकर जो डिसीजन लिया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और इस कहानी की एंडिंग ने आपको मुतमिन किया या आपके मुख्तलिफ अंजाम की तवक्को रख रहे थे? अपनी फेवरेट किरदार का नाम जरूर लिखें और ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा मुतासर सीन्स कौन से थे। अगर आपके ख्याल में आगे इस कहानी का दूसरा पार्ट आना चाहिए तो अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असल ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने बेयदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। सजरते मित्रों, क्या मिराल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज आखिरकार एक्सपोज हो सकता है? क्या अली खान वाकई बेकसूर है या वही इस पुरानी का सबसे बड़ा विलन है? दूसरी तरफ एलिया की खतरनाक प्लान हर लम्हा कामयाबी करीब पहुंच रही है, जबकि आदिल अपने ज़मीर और साजिश के दरमियान बुरी तरह उलझ चुका है। आखिर निकाह के दिन ऐसा क्या होगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या ट्रुथ सामने आ जाएगा या फिर लव एक बार फिर नफरत के हाथों शिकस्त खाएगा? इस स्टोरी में हर एक नया ट्विस्ट सबको हैरान करने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मिराल को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी में एक ही लम्हा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वो वक्त था जब हर सुबह अपने साथ उम्मीद लेकर आती थी, और दूसरा ये जब हर नया दिन किसी नामालूम खौफ का पैगाम बन चुका था। वालिद की वफात के बाद घर की दीवारें भी अजनबी महसूस होने लगी थीं। माँ के चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जो अल्फाज से कहीं ज्यादा दर्द बयान कर रही थी। मिराल जितनी बार इनसे सवाल करती, इतनी ही बार जवाब की जगह खामोश नजरें मिलती थीं। इसे बेयकीनी के दौरान अचानक दरवाजे की बेल बजती है। आने वाला शख्स ज्यादा देर ना रुका, मगर जाते जाते इतना जरूर कह गया कि सच वो नहीं जो मिराल बरसों से मानती आई है। ये एक जुमला इसके जहन में मुसलसल गूंजने लगा। वो बार बार सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे हर शख्स जानता है मगर इससे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं ख्यालों में इसे अली खान याद आता है, वो शख्स जिसकी मौजूदगी इसके लिए हमेशा होप की अलामत बनी हुई थी। वही अली खान जिसने हर मुश्किल वक्त में इसका हौसला बढ़ाया था, हर परेशानी में इसका साथ दिया और कभी इसे तन्हा महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे रुख पर आ चुके थे कि इस शख्स के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही थी। मिराल का दिल इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर दिमाग मुसलसल इसे खबरदार कर रहा था कि हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती। इस कश्मकश ने इसके अंदर एक ऐसी चीज बेचैनी पैदा कर दी जिससे निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दूसरी जानिब एलिया नहायत इत्मीनान से अपने मंसूबे के हर मरले को तरतीब दे रही थी। इसके सामने आदिल खामोश खड़ा था, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत वहाँ मौजूद हो। एलिया की आंखों में अजीब सी स्माइल थी, मगर इसे मुस्कुराहट के पीछे बरसों की नफरत, इंतकाम और शिकस्त का जहर छुपा हुआ था। इसने आदिल को वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि आने वाली वेडिंग सिर्फ एक खुशी की तकरीब नहीं बल्कि इसके इंतकाम का मैदान बन चुका है। जब पूरी फैमिली निकाह की खुशियों में डूब चुकी थी, जब स्टेज पर सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर जमी हुई थी, तब आदिल सबके सामने मिराल से शादी से इनकार करेगा। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि वो ये इल्जाम भी लगाएगा कि मिराल का अली खान के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों कई बरसों से बिजनेस के बहाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आदिल ने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर इस सब से क्या हासिल होगा, मगर एलिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त खुद दे देता है। दोस्तों, इसके नजदीक असल गेम अभी शुरू हुआ था और इस खेल में जज्बात, एतमाद और रिश्ते सिर्फ मोहरे थे। बरसों से संभाल कर रखी गई इज्जत चंद लम्हों में बिखर जाए, ताकि वो हर शख्स जिसने इसे तकलीफ दी थी अपनी बेबसी अपनी आंखों से देखे। नाज़रीन, इधर अली खान को यकूब ने खबरदार किया कि एलिया की चाल आम साजिश नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें मिराल समेत सब फंस सकते हैं। अली ने फौरन फैसला किया कि वो हर कीमत पर सच सामने लाएगा, चाहे इसके लिए इसे अपने बारे में बरसों से छुपाई गई हकीकत ही क्यों ना जाहिर करनी पड़े। इसके दिल में मिराल के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का दूसरा नाम भी है। दूसरी तरफ मिराल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और मसरूफियात में खुद को उलझाने की कोशिश कर रही थी कि मगर इसका जहन हर लम्हा अली की तरफ खींचा जाता। एक दिन वो आदिल के साथ एक कैफे में बैठी कॉफी और सैंडविच के सामने खामोश
बैठी थी, मगर इसके दिल के अंदर सवालों का शोर बढ़ता हुआ जा रहा था। वो अपनी वालदा की बीमारी में सलसल बढ़ते हुए स्ट्रेस और मुस्तकबिल की उलझनों का जिक्र कर रही थी, जबकि आदन अपने ज़मीर और एलिया के अहकामात के दरमियान फंसा हुआ था। इसी लम्हे अली खान की कॉल आई, मगर हकीकत एक बार फिर खामोश होती हुई नजर आई। तीनों अपनी अपनी जगह एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुके थे जहां ट्रुथ तक पहुंचने की कीमत शायद इनकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा होने वाली थी। दोस्तों, मिराल की बेचैनी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। एक दिन वही पुरस्कार खातून दोबारा इसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें ऐसे तस्वीर, दस्तावेजात और पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे जिन्होंने मिराल को दुनिया को यकसर बदल दिया। इसे मालूम हुआ कि शाहनवाज खान इसके मरहूम मामू थे और अली खान सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि इसके खानदान से जुड़ा हुआ वो किरदार था जिसकी हकीकत बरसों तक इससे छुपाई गई थी। ये इंकिशाफ किसी शौक से कम नहीं था। मिराल के जहन में एक साथ सैकड़ों सवाल गर्दिश करने लगे। वो सोचने लगी कि अगर अली ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी तो फिर अपनी शनाख्त क्यों छुपाई है? क्या इसके हर मेमोरी झूठ थी या इन यादों में वाकई कोई खलूस भी मौजूद था? दूसरी तरफ एलिया अपने मंसूबे की कामयाबी पर मुतमिन थी, क्योंकि इसे यकीन था कि ऐसा करने से सब लोग बर्बाद होने वाले हैं। इसे यकीन था कि अमीराल कभी अली पर ट्रस्ट नहीं करेगी और यही इसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। इधर आदत भी अपने ज़मीर की अदालत में खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसमें बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। दोस्तों, इसी दौरान अली खान ने फैसला किया कि अब मजीद खामोश रहना सबसे बड़ी गलती होगी। वो मिराल के सामने पहुंचा और पहली बार इसने अपनी जिंदगी के हालात से पर्दा उठा दिया। इसने बता दिया कि इसने अपनी शनाख्त सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि माजी की दुश्मनियां इनकी मोहब्बत तक ना पहुंच सके। इसने एतराफ किया कि इस खानदान भी कोई बरसों से गलत फैसलों की सजा भुगत रहा है, मगर इसने कभी मिराल या इसके वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो ऐसा सोच सकता है। दोस्तों, अली की आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसने कहा कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो इस जुर्म का एतराफ करता है, मगर कत्ल, धोखे और इंतकाम का इल्जाम हरगिज कबूल नहीं करेगा। मिराल का दिल इसकी बातों पर यकीन करना चाहता था, मगर सामने मौजूद एविडेंस इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, जज्बात और हकीकत के दरमियान खड़ी मिराल के लिए फैसला करना आसान नहीं था। इसने अली से दूर रहने का ऐलान कर लिया, जबकि अली सिर्फ एक जुमला कह सका कि कभी कभी सच को साबित होने में वक्त लगता है, मगर वो एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, चंद दिन बाद वही निकाह का दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार हर शख्स मुख्तलिफ नीयत के साथ कर रहा था। हाल खूबसूरती से सजा हुआ था, हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स और खुशियों का शोर था, मगर इस चमक के पीछे कई चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही निकाह का रस्म शुरू होने वाली थी, आदिल अचानक सबके सामने खड़ा हो गया। हर शख्स ने समझा कि वो कोई रस्मी बात करेगा, मगर इसने एक लम्हे के लिए एलिया की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगले लम्हे इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। इसने पूरी साजिश, एलिया के तमाम आदात और अपने किरदार का एतराफ कर लिया। हाल में मुकम्मल साइलेंस छा गई। एलिया के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक लम्हे में बिखर गया। मिराल हैरत से कभी आदिल को देखती और कभी अली को, जबकि हर शख्स हकीकत जानकर सख्ते में आ चुका था। दोस्तों, यकूब ने भी वो तमाम सबूत पेश कर दिए जिनसे साबित हुआ कि एलिया बरसों से नफरत की बुनियाद पर सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। इसी लम्हे मिराल को एहसास हुआ कि सच हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। एलिया की तमाम चालें नाकाम हो चुकी थी। इनके इंतकाम की इमारत इसी अपने झूठ के बोझ तले गिर गई। मिराल आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। दोस्तों, अली ने भी किसी शिकवे के बगैर सिर्फ इतना कहा कि मोहब्बत का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। दोनों ने फैसला किया कि वो माजी की जंजीरों में कैद रहने की बजाय एक नई जर्नी का आगाज कर सकते हैं, जहां लव नफरत पर फेथ, खौफ पर जस्टिस, इंतकाम पर फ्यूचर, माजी के अंधेरों पर गालिब होगा। सूरज की पहली किरण आसमान पर नमूदार हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुदरत खुद ऐलान कर रही हो कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, मगर हमेशा नहीं। दोस्तों, बात कहानियां इख्तिताम पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई बिगनिंग जन्म लेती है। और मिराल और अली खान की कहानी अब इस नए बाब में दाखिल हो चुकी थी, जहां उम्मीद ने मायूसी को, सच ने फरेब को और मोहब्बत ने हर नफरत को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ट्रुथ एक न एक दिन सामने आता है, चाहे इसे कितनी ही चालाकी से क्यों न छुपाया जाए। ट्रस्ट हर रिश्ते की बुनियाद होता है और जब एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ जाती है। हमें दूसरों के बारे में फैसले करने से पहले हर पहलू को समझना चाहिए, क्योंकि हर स्टोरी के दो रूप होते हैं। नफरत और इंतकाम वक्ती विक्ट्री तो दे सकते हैं, मगर दिल का सुकून कभी नहीं दे सकते। आखिरकार लव, सब्र, सच्चाई और खलूस वो ताकतें हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और रिश्तों को हमेशा कायम रखती हैं। दोस्तों, आज की दिलचस्प स्टोरी यही खत्म होती है, लेकिन असल सवालात अभी बाकी हैं। आपको मिराल और अली खान की मोहब्बत कैसी लगी? क्या आपके ख्याल में अली खान ने अपनी शनाख्त छुपाकर दुरुस्त फैसला किया था, या इसे शुरू से ही सच बता देना चाहिए था? एलिया के किरदार के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वो सिर्फ इंतकाम लेना चाहती थी या इसके पास अपने
अमल की कोई मजबूत वजह भी थी? आदिल ने आखिर में सच बोलकर जो डिसीजन लिया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और इस कहानी की एंडिंग ने आपको मुतमिन किया या आपके मुख्तलिफ अंजाम की तवक्को रख रहे थे? अपनी फेवरेट किरदार का नाम जरूर लिखें और ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा मुतासर सीन्स कौन से थे। अगर आपके ख्याल में आगे इस कहानी का दूसरा पार्ट आना चाहिए तो अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असल ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने बेयदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। सजरत मित्रों, क्या मेराल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज आखिरकार एक्सपोज हो सकता है? क्या अली खान वाकई बेकसूर है या वही इस पुरानी का सबसे बड़ा विलन है? दूसरी तरफ एलिया की खतरनाक प्लान हर लम्हा कामयाबी करीब पहुंच रही है, जबकि आदिल अपने ज़मीर और साजिश के दरमियान बुरी तरह उलझ चुका है। आखिर निकाह के दिन ऐसा क्या होगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या ट्रुथ सामने आ जाएगा या फिर लव एक बार फिर नफरत के हाथों शिकस्त खाएगा? इस स्टोरी में हर एक नया ट्विस्ट सबको हैरान करने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मिराल को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी में एक ही लम्हा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वो वक्त था जब हर सुबह अपने साथ उम्मीद लेकर आती थी, और दूसरा ये जब हर नया दिन किसी नामालूम खौफ का पैगाम बन चुका था। वालिद की वफात के बाद घर की दीवारें भी अजनबी महसूस होने लगी थीं। माँ के चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जो अल्फाज से कहीं ज्यादा दर्द बयान कर रही थी। मिराल जितनी बार इनसे सवाल करती, इतनी ही बार जवाब की जगह खामोश नजरें मिलती थीं। इसे बेयकीनी के दौरान अचानक दरवाजे की बेल बजती है। आने वाला शख्स ज्यादा देर ना रुका, मगर जाते जाते इतना जरूर कह गया कि सच वो नहीं जो मिराल बरसों से मानती आई है। ये एक जुमला इसके जहन में मुसलसल गूंजने लगा। वो बार बार सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे हर शख्स जानता है मगर इससे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं ख्यालों में इसे अली खान याद आता है, वो शख्स जिसकी मौजूदगी इसके लिए हमेशा होप की अलामत बनी हुई थी। वही अली खान जिसने हर मुश्किल वक्त में इसका हौसला बढ़ाया था, हर परेशानी में इसका साथ दिया और कभी इसे तन्हा महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे रुख पर आ चुके थे कि इस शख्स के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही थी। मिराल का दिल इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर दिमाग मुसलसल इसे खबरदार कर रहा था। क्या चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती? इस कशमकश ने इसके अंदर एक ऐसी चीज बेचैनी पैदा कर दी जिससे निकलने का इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दूसरी जानिब एलिया नहायत इत्मीनान से अपने मंसूबे के हर मरले को तरतीब दे रही थी। इसके सामने आदिल खामोश खड़ा था, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत वहाँ मौजूद हो। एलिया की आंखों में अजीब सी स्माइल थी, मगर इसे मुस्कुराहट के पीछे बरसों की नफरत, इंतकाम और शिकस्त का जहर छुपा हुआ था। इसने आदिल को वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि आने वाली वेडिंग सिर्फ एक खुशी की तकरीब नहीं बल्कि इसके इंतकाम का मैदान बन चुका है। जब पूरी फैमिली निकाह की खुशियों में डूब चुकी थी, जब स्टेज पर सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर जमी हुई थी, तब आदिल सबके सामने मिराल से शादी से इनकार करेगा। सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि वो ये इल्जाम भी लगाएगा कि मिराल का अली खान के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों कई बरसों से बिजनेस के बहाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आदिल ने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर इस सब से क्या हासिल होगा, मगर एलिया ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त खुद दे देता है। दोस्तों, इसके नजदीक असल गेम अभी शुरू हुआ था और इस खेल में जज्बात, एतमाद और रिश्ते सिर्फ मोहरे थे। बरसों से संभाल कर रखी गई इज्जत चंद लम्हों में बिखर जाए, ताकि वो हर शख्स जिसने इसे तकलीफ दी थी अपनी बेबसी अपनी आंखों से देखे। नाजरीन, इधर अली खान को यकूब ने खबरदार किया कि एलिया की चाल आम साजिश नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें मिराल समेत सब फंस सकते हैं। अली ने फौरन फैसला किया कि वो हर कीमत पर सच सामने लाएगा, चाहे इसके लिए इसे अपने बारे में बरसों से छुपाई गई हकीकत ही क्यों ना जाहिर करनी पड़े। इसके दिल में मिराल के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, मगर वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का दूसरा नाम भी है। दूसरी तरफ मिराल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और मसरूफियात में खुद को उलझाने की कोशिश कर रही थी कि मगर इसका जहन हर लम्हा अली की तरफ खींचा जाता। एक दिन वो आदिल के साथ एक कैफे में बैठी कॉफी और सैंडविच के सामने खामोश बैठी थी, मगर इसके दिल के अंदर सवालों का शोर बढ़ता हुआ जा रहा था। वो अपनी वालदा की बीमारी में मुसलसल बढ़ते हुए स्ट्रेस और मुस्तकबिल की उलझनों का जिक्र कर रही थी, जबकि आदिल अपने जमीर और एलिया के अहकामात के दरमियान फंसा हुआ था। इसीलिए में अली खान की कॉल आई, मगर हकीकत एक बार फिर खामोश होती हुई नजर आई। तीनों अपनी अपनी जगह एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुके थे जहाँ ट्रुथ तक पहुँचने की कीमत शायद की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा होने वाली थी।
दोस्तों मिराल की बेचैनी अब अपने रूज पर पहुंच चुकी थी। एक दिन वही पुलिसवाल खातून दोबारा इसके सामने आ खड़ी होगी। इस बार इसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें ऐसी तस्वीर, दस्तावेजात और पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे जिन्होंने मिराल को दुनिया को यकसर बदल दिया। इसे मालूम हुआ कि शाहनवाज खान इसके मरहूम मामू थे और अली खान सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि इसके खानदान से जुड़ा हुआ वो किरदार था जिसकी हकीकत बरसों तक इससे छुपाई गई थी। यह इंकिशाफ किसी शौक से कम नहीं था। मिराल के जहन में एक साथ सैकड़ों सवाल गर्दिश करने लगे। वो सोचने लगी कि अगर अली ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी तो फिर अपनी शनाख्त क्यों छुपाई है? क्या इसके हर मेमोरी झूठ थी या इन यादों में वाकई कोई खलूस भी मौजूद था? दूसरी तरफ एलिया अपने मंसूबे की कामयाबी पर मुतमिन थी क्योंकि इसे यकीन था कि ऐसा करने से सब लोग बर्बाद होने वाले हैं। इसे यकीन था कि अब मिराल कभी अली पर ट्रस्ट नहीं करेगी और यही इसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। इधर आदर भी अपने ज़मीर की अदालत में खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसमें बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। दोस्तों इसी दौरान अली खान ने फैसला किया कि अब मजीद खामोश रहना सबसे बड़ी गलती होगी। वो मिराल के सामने पहुंचा और पहली बार इसने अपनी जिंदगी के राज से पर्दा उठा दिया। इसने बता दिया कि इसने अपनी शनाख्त सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि माजी की दुश्मनियां इनकी मोहब्बत तक ना पहुंच सके। इसने एतराफ़ किया कि इस खानदान भी कोई बरसों से गलत फैसलों की सजा भुगत रहा है मगर इसने कभी मिराल या इसके वालिदैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो ऐसा सोच सकता है। दोस्तों अली की आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसने कहा कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो इस जुर्म का एतराफ़ करता है मगर कत्ल, धोखे और इंतकाम का इल्ज़ाम हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। मिराल का दिल इसकी बातों पर यकीन करना चाहता था मगर सामने मौजूद एविडेंस इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे थे। दोस्तों जज्बात और हकीकत के दरमियान खड़ी मिराल के लिए फैसला करना आसान नहीं था। इसने अली से दूर रहने का ऐलान कर लिया जबकि अली सिर्फ एक जुमला कह सका कि कभी कभी सच को साबित होने में वक्त लगता है मगर वो एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों चंद दिन बाद वही निकाह का दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार हर शख्स मुख्तलिफ नीयत के साथ कर रहा था। हाल खूबसूरती से सजा हुआ था, हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स और खुशियों का शोर था मगर इस चमक के पीछे कई चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही निकाह का रस्म शुरू होने वाली थी आदिल अचानक सबके सामने खड़ा हो गया। हर शख्स ने समझा कि वो कोई रस्मी बात करेगा मगर इसने एक लम्हे के लिए एलिया की तरफ देखा फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगले लम्हे इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। इसने पूरी साजिश एलिया के तमाम हदायत और अपने किरदार का एतराफ़ कर लिया। हाल में मुकम्मल साइलेंस छा गई। एलिया के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक लम्हे में बिखर गया। मिराल हैरत से कभी आदिल को देखती और कभी अली को जबकि हर शख्स हकीकत जानकर सख्ते में आ चुका था। दोस्तों यकूब ने भी वो तमाम सबूत पेश कर दिए जिनसे साबित हुआ कि एलिया बरसों से नफरत की बुनियाद पर सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। इसी लम्हे मिराल को एहसास हुआ कि सच कब हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। एलिया की तमाम चालें नाकाम हो चुकी थी। इनके इंतकाम की इमारत इसी अपने झूठ के बोझ तले गिर गई। मिराल आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर इन आंसुओं में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। दोस्तों अली ने भी किसी शिकवे के बगैर सिर्फ इतना कहा कि मोहब्बत का असली ना साडा बंगला ते ना साडी लारी दिल जे कर दई लाल तू यारी।